Good morning बच्चों, how are you? Now I will start the next exercise, that is the 5.3, that is in the arithmetic progressions. So अब तक हमने जो है 5.2 तक जो है क्वेश्चंस किए, 5.3 के जो है क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करेंगे. तो आप ध्यान से देखिए, देखने के बाद उसको प्रैक्टिस करते जाइए. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखा है. क्या है क्वेश्चंस? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. हियर द सब क्वेश्चंस आर देयर. In this one I have written the only first questions, that is the AP 2 7 14 2 7 12 so on to the 10 terms. We want to find the sum of the following APs, यानी 2 से लेकर 10th टर्म तक का सम पता करना है. ओके, फ्रॉम 2 to the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to the 10th, and from the first one the sum of these terms we have to find out. So by finding this sum of the terms, we know that the formula Sn is equal to n divided by 2a plus n minus 1 into d. This is the formula. और एक फार्मूला है Sn is equal to n divided by 2a plus l. इसको ही शॉर्ट करके L यूज होता है. L मीन्स एक्चुअली L इज द an तो लो या L तो लो, तो ये फॉर्मूले यूज होते हैं. सो नाउ वी आर यूजिंग द फर्स्ट वन, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज. नाउ हियर व्हाट इज द AP? AP is here 2 7 12 up to the 10 term. Okay, so here a is equal to 2, d is equal to 7 minus 2, that is the 5, and this is the n is equal to 10. ये टर्म नहीं है. 10th पोजीशन पे क्या नंबर आता? ओके, सो दिस इज द an नहीं है यहाँ पे. सो वी वांट टू फाइंड आउट हियर द सम ऑफ फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू द 10th टर्म्स. फर्स्ट से लेकर 10 तक जितने टर्म्स हैं सारों को सम करना है. सो Sn हमको फाइंड आउट करना है. Sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. We know that Sn is equal to n divided by 2a plus n minus 1 into d. सारे वैल्यू है हमारे पास. n कितना है? 10 है. सो S10 is equal to 10 divided by 2 into a is 2 plus n is 10 minus 1 into d is 5. Now 2 ones are 2 5s are. So 5 into 2 2s are 4 plus 10 minus 1 is 9 into 5. So 5, this is 4 plus, that is 9 5s are 45. Then adding this 5 into, that is 49. 49 5s are. So 49 5s are 245. This one. Okay, sum of the 10th terms. So लास्ट में हम लिख सकते हैं यहाँ एक सेंटेंस, sum of, therefore sum of 10th term of AP is 245. ऐसे सॉल्व करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. यहाँ पे AP दिया, AP is -37 -33 -29 so on up to the 12 terms. It means what? From the first term to the 12 terms, जो भी नंबर आते हैं उसका सम हमको फाइंड आउट करना है. सेम फर्स्ट कैसे किए? ऐसे ही. फर्स्ट, so AP is here -37 -33 -29, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है एक्चुअली, नेगेटिव में है ना, टू 12 terms. Here a is equal to -37, d is equal to a2 minus a1 -33 -37. So d is equal to -33 minus into minus plus 37. So d is equal to 4. So finally d का वैल्यू कितना है? d is the 4. Now
n is 12, n is equal to 12, we want to find out the S12. okay, S12 हमको फाइंड आउट करना है. now Sn formula. now Sn is equal to n divided by 2a plus n minus 1 into d. we can substitute the values. n कितना है, 12 divided by 2, 2 into a is minus 37 plus n is 12 minus 1 into d is 4. so 2 1s are 2 6s are, ये आएगा 6 मल्टीप्लाई कितना होता माइनस 74, 37 इंटू 2 74 प्लस 12 माइनस 1 इज 11 इंटू 4. so 6, this is the minus 74, 11 into 4 is 44. नेक्स्ट 6, अब यहाँ पे दोनों साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट रहे तो सब्ट्रैक्ट करते. 4 माइनस 4 इज 0, 7 माइनस 4 मीन्स 3, ये माइनस में है, इसको मल्टीप्लाई करना है. नाउ और एक बार लिखता हूँ 6 माइनस 30, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 180. ये क्या है, यन यहाँ पे यन आना था, यन कितना है 12 है, सो यस 12, तो ये क्या होता यस 12. सो देयरफॉर सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ AP is minus 180, minus 180. अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, द APs इज हियर. AP इज 0.6, 1.7, 2.8 so on up to the 100 terms. 100 terms तक, फ्रॉम फर्स्ट टू द 100 terms जितने भी आते हैं सबका सम पता करना है. सेम अभी ऐसे किए ना. सो AP क्या है हमारा, AP 0.6, 1.7, 2.8 so on to 100 terms. so here A is equal to 0.6 and D is equal to 2.8 minus 1.7. so D is equal to 8 minus 7 means 1, 2 minus 1 is 1. so ये कितना आएगा, D is equal to 1.1 and N is equal to 100 and yes 100 we have to find out. yes 100. Same thing, we apply the formula Sn is equal to, now Sn is equal to n divided by 2, 2a plus n minus 1 into d. n कितना है 100 divided by 2, 2 into and a is 0.6 plus n is, n कितना है 100, 100 minus 1 into d is 1.1. 2 1s are 2 50s are, so ये आएगा 50. नेक्स्ट 0.6 into 2, so 6 2s are 12, 1 carry, then 2 into 0 0, carry का 1 आएगा 1.2 plus 99 into 1.1. नेक्स्ट 50 into, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 99 1.1, 9999, सो 9 18 1 कैरी 1089. डेसिमल पॉइंट हमको यहाँ लेना है, एक डिजिट के पास है ना. सो कितना हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1.2 प्लस 108.9. नाउ ऐड, अब ऐड करना है. इसको ऐड किए तो कितना होता 50 इंटू, भी ऐड करेंगे, सो 9 प्लस 2 इज 11, 1 कैरी, सो दिस इज 9 and 1 is 10, 1 carry, that is 1 and 1, so ये आएगा 110.1. नेक्स्ट इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते. नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय दिस वन. सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट 5 इंटू 10 इंटू 110.1, सो 5 इंटू, ये अगर 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाता 1101.
ये डेसिमल पॉइंट मूव हो जाता, इधर आता। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5। सो मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स इज इक्वल टू 5 1 5, 5 2 0 0, 5 1 5, 5 1 5। So answer is 5505. This is what, how much? Yes, कितना है ये? Yes 100, yes 100। तो यहाँ पे आएगा yes 100, n के प्लेस पे n का वैल्यू। So therefore sum of 100 terms of AP, फर्स्ट 100 टर्म्स भी लिख सकते, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ AP इज 5505। ऐसे है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड का, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। हियर द AP इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शन में है। सो AP इज हियर 1/15, 1/12, 1/10, सो ऑन टू 11 टर्म्स। ओके, मीन्स फर्स्ट से लेकर 11 टर्म तक जितने नंबर हैं उनका सम करना है। सो हियर A is equal to 1/15, D is equal to A2 minus A1, 1/12 minus 1/15। So D is equal to, यहाँ पे LCM आएगा 60। 60 कैसे आएगा? आप LCM मेथड से भी यहाँ पे लिख के फाइंड आउट कर सकते। सो दिस 60 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस 12 एंड 15, यानी 60 ऐसे नंबर है जो 12 के टेबल में भी आता, 15 के टेबल में भी आता। ओके, सो अगर हम 15 2 ले लिए 30 होता, 30 इसमें आता पर 12 में नहीं आता। 15 3 ले लिए 45 आएगा, 45 इसमें आएगा पर 12 में नहीं आएगा। 15 4 60 आया, 60 इसमें भी आता, इसमें भी आता। ओके, नाउ रीड द टेबल। 12 1 12, 5 60, दैट 5 मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर। 15 1 15 4 15 4 60, 4 मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर्स। So 1 5 is 5 minus 1 4 is 4. So D is equal to 5 minus 4 is 1 divided by 60. D एक आ गया। So N is equal to 11 and Sn is equal to, Sn नहीं, हमको S11 find out करना है। S11 is equal to the question mark. Now the formula. Now Sn is equal to N divided by 2, 2A plus N minus 1 into D. So yes, 11 is equal to 11 divided by 2, 2 into A कितना है 1 divided by 15 plus N is 11 minus 1 into D is 1 by 60. Okay, so 11 divided by 2, 2 1s are 2, 2 divided by 15 plus 11 minus 1 is 10, 10 into 1 is 10 divided by 60. So this 0 0 get cancel. सेम मैं और एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। 11 divided by 2, 2 divided by 15 plus 1 divided by 6, 1 divided by 6. Now 11 divided by 2, here the LCM। 15 6 टेबल में नहीं आता, 15 2 लेंगे, 15 2 30, 30 आता 6 टेबल में। सो 30 इज द LCM। नाउ रीड द टेबल। 15 1 15, 15 2 30, सो 2 मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर। 6 1 6, 6 5 30, दैट 5 मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर। टेबल ऐसे ही रीड करना है, उसके न्यूमरेटर में जो पोजीशन पे आ रहा है मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2 4 प्लस 1 5 5, सो 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 30। ओके, ये रिड्यूस होता 3 3 3 10। सो मल्टीप्लाई 11 इंटू 3 इज 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इज 20। सो दिस इज द S11। सो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 11 terms in AP is 33 divided by 20. 33 divided by 20. This is the final answer.
नाउ द सेकंड मेन क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है मेन सेकंड का? सो फर्स्ट, फाइंड द सम गिवन बिलो, मतलब जो टर्म्स है यहाँ पे एपी के उसका सम पता करना है। सो 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू द प्लस 84। सो दिस 84 इज द an। ये an है, n नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में कॉमा आया था ना, यहाँ पे प्लस है। सो दिस इज द an। सो और एक बार लिखेंगे हम, AP इज 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस सो ऑन अप टू द 84। मतलब ये पोजीशन पर जहां पर 84 है ना, तो यहां से यहां तक नंबर्स का सम कितना होता है पता करना है। सो हियर A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 10 1/2 माइनस 7। सो D इज इक्वल टू, हियर इसको चेंज करेंगे, 10 2 20 प्लस 1 इज 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7। सो दैट इज अगेन एलसीएम आएगा, 2 इंटू 7 इज 14, 21 माइनस 14 divided by 2. So finally 7 divided by 2, D is the 7 divided by 2, and 84 is the an is equal to 84. So अब हमको Sn पता करना है, तो Sn के लिए यहाँ पे n नहीं है। So we want to find the first n, then afterwards Sn. Okay, first n पता करने के लिए an का फॉर्मूला यूज होता। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे an है, an इज द 84 इज इक्वल टू a इज 7 प्लस n नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी इज 7 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट 7 को इधर लाएंगे, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2। 84 माइनस 7 कितना होता, 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट अब ये इधर आएगा, रेसिप्रोकल होके आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 न्यूमरेटर में आता, 7 डिनोमिनेटर में आता। सो 77 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। So 7 1 जा 7 11 जा, 11 into 2 is 22 is equal to n minus 1। 1 इधर लाएंगे, 22 plus 1 is equal to n, therefore n is equal to 23। n भी आ गया, n भी आया। नेक्स्ट हमको क्या पता करना है, यस 84 तक का सम पता करना है। सो n इज इक्वल टू 23। सो हम Sn के फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक तो Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक यूज कर सकते हैं, या Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। यस, l इज व्हाट, ये l ही होता, ये नहीं होता, सॉरी, an इज द l। an कहाँ है यहाँ पे, दिस इज द l। यूज कर सकते हैं, फिर ये यूज कर सकते हैं, इजी हो जाता है। ये भी करे तो आंसर वही आएगा और ये भी किए तो आंसर सेम ही आएगा। सो दैट Sn इज इक्वल टू Sn, n का वैल्यू है हमारे पास कितना है 23, इज इक्वल टू, पहले एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस l। सो यस 23 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 2, a इज 7 प्लस l is 84। So now 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, बाहर आके इंटू होता है, इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आता, 84 इंटू 7। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन है, मैं मल्टीप्लाई करूं, प्लस साइन है यहाँ पे, कितना हो जाता 91। सो दिस इज द 91। नाउ मल्टीप्लाई 91 इंटू 23। सो 3 27 2 18। सो 3 9 0 1 कैरी 2, दैट इज इक्वल टू 2093 डिवाइडेड बाई 2 इज द yes 23 is equal to 2 1s are 2 and 0,
2 4 जा 8, remaining 1, 2 6 जा 12, okay, 1 divided by 2. This is the final answer. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है. 34, 32, 30, 10. Here a is equal to 34, first term. d is equal to 32 minus 34, 32 minus 34 कितना होगा? d is equal to -2. d हो गया. एंड दिस इज द an is equal to 10. हमको क्या फाइंड आउट करना है? यानी फाइंड आउट करना है. देन sn. सो फर्स्ट हमको an का फार्मूला लेना पड़ेगा. क्यों? फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n के लिए. सो नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an कितना है? 10 इज इक्वल टू a इज 34 प्लस n इज n नहीं है n माइनस 1 इंटू डी इज -2. 34 इधर लाएंगे. ओके 34 इधर लाए तो कितना होता है? 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2. सो माइनस किए तो कितना होता? -24. फिर ये 2 डिनोमिनेटर में लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू n माइनस 1. सो माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 12 जा. So 12 is equal to n minus 1, 12 plus 1 is equal to n, therefore n is equal to 13. n आ गया 13. Now so that अब हमको फार्मूला लेना है. Sn का पूरा फार्मूला भी लेके कर सकते हैं या फिर हम जो है उसका शॉर्ट में a प्लस यल भी ले सकते हैं. Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस यल. यल क्या है हमारा? यल ये है. ओके यल इज इक्वल टू 10. an इज द यल. सो यस n कितना है? n इज द 13. 13 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2. a इज 34 प्लस यल इज 10 प्लस यल इज 10. यल इज 10. नाउ 13 डिवाइडेड बाई 2 इसको ऐड किए तो 44 इंटू 44. 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा. सो 13 इंटू 22. सो दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 22, 6 2 6 2. सो दैट इज द 286. So yes, 13 is equal to 286. It means what? The sum of the first terms to the this plus 10. यहां से लेकर यहां तक के टर्म्स का सम कितना होता? 286. क्वेश्चन नंबर थर्ड, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू द this terms minus 230. so और एक बार लिखता हूँ -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस सो ऑन प्लस -230. एग्जाम में एक बार लिखना है, गिवन मिल के लिखना है ऐसे, और एक बार लिखना है. वहाँ क्या करते हैं? डायरेक्ट ऐसे ही a इज इक्वल टू लेते हैं, तो ऐसे नहीं आना चाहिए. इसलिए जो है मैं और एक बार लिखा रहा हूँ. सो हियर a इज इक्वल टू -5, d is equal to -8 a2 minus a1 is -5. So -8 minus into minus plus 5 that is equal to -3. ये हो गया d. नेक्स्ट an है यहाँ पे. an is equal to -230. तो हमको फर्स्ट n फाइंड करना है, देन आफ्टरवर्ड्स sn is equal to. सो sn मीन्स n का वैल्यू जो आएगा उसके अनुसार उसका वैल्यू आता. ओके now an is equal to a plus n minus 1 into d. so an कितना है हमारा? -230 is equal to a is -5 plus n minus 1 into d is -3.
नेक्स्ट 5 को इधर लाएंगे, ये 5 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा -230 प्लस 5 इधर आया ना, प्लस हो गया, इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। नेक्स्ट अब ये माइनस होके कितना होता, -225 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब ये डिनोमिनेटर में लाएंगे, -225 डिवाइडेड बाय -3 विथ इट्स साइन, उसके साइन के साथ लाए हम, इज इक्वल टू n-1 माइनस माइनस, अब ये कैंसिल होता, ये कैंसिल होता, 3 1 जा 3 7 जा, एक बच गया, 3 5 जा कैंसिल हो रहा, 75 आ रहा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा, सो 75 इज इक्वल टू n-1, सो 75 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये इधर आके प्लस हो गया, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 76, n आ गया, ओके n हो गया। अब हमको फाइंड करना है n के अनुसार, यस 76 हमको पता करना है, ओके। we know that Sn is equal to n by 2 a plus l। यस n कितना है 76 इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 2 a इज -5 प्लस यल इज यल जो है an ही यल होता, मैंने बताया था अभी an ही यल होता, दैट इज द -230, ओके। सो इसको रिड्यूस करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 6, रिमेनिंग 1 2 8 जा, सो 38 आएगा, -5 प्लस इंटू माइनस -230, ओके, सो 230। नेक्स्ट 38 इसको ऐड किए तो कितना होता, माइनस इंटू माइनस, सॉरी इंटू नहीं है, माइनस बोथ आर द माइनस साइन, दैट इज 235। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, ये माइनस सेम एज इट इज आता, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है, 235 इंटू 38, 8 5 जा 40, one carry 9 8, so that is 8930, so yes 76, so this is the value of yes 76। ये 76 क्या है, मतलब अगर हम यहाँ से टर्म्स को अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 अप टू द 76 पोजीशन पर जो है ये वैल्यू आता, सो दिस इज द an, so its sum is -8930। Next question number third first. In an AP given A is equal to 5, D is equal to 3, AN is equal to 50, find N and Sn। मतलब सेकंड में जो क्वेश्चन किए थे ना हम, सेम ऐसे ही है, सो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही है, गिवन A is equal to 5, D is equal to 3 and AN is equal to 50, n is equal to question mark, Sn is equal to question mark। Now an is equal to a plus n minus 1 into d, an है 50 है हमारे पास, an is the 50 is equal to a is 5 plus n is n नहीं है, n minus 1 into d is 3। Now 5 को इधर लाएंगे, 50 minus 5 is equal to n minus 1 into 3, 50 minus 5 means 45, so that is the 45 is equal to n minus 1 into d, sorry n minus 1 into 3। अब ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आता, 45 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n minus 1, 3 1 जा रिमेनिंग 1 3 5 जा 15 आएगा, 15 इज इक्वल टू n minus 1। अब कुछ लोग जो है 3 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करते फिर अरेंज करते, वैसे भी किए तो आता, ओके, ऐसे किए तो भी सेम ही आंसर आता। -1 इधर लाना है, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये कितना होता 16 हो जाता, 16 इज इक्वल टू n, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 16।
n आ गया। नेक्स्ट हमको Sn पता करना है। Sn मीन्स n कितना है 16 है। यस 16 हमको पता करना है। नाउ वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस l, a प्लस l। सो यस n क्या है, यस n इज 16 is equal to 16 divided by 2, a is 5 plus l बोले तो यही होता है, an is the l, that is the 50, 2 ones are 2 8s are, okay, so 8 into ऐड करना है, बाहर लाना है, 55 हो जाएगा, is equal to, हम मल्टीप्लाई करेंगे 55 into 8, 440, this is the yes 16, yes 16। फर्स्ट हम n फाइंड आउट किए, फिर इसके अनुसार इसको फाइंड आउट किए। फार्मूला ये भी ले सकते हैं या फिर फार्मूला Sn इज इक्वल टू जो बड़ा वाला फार्मूला है वो भी यूज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड से सेकंड क्वेश्चन। हियर a is equal to 7, a13 is equal to 35, we want to find the d is equal to question mark, yes 13 is equal to question mark। तो यहाँ पे yes 13 है, a 13 है, तो ये n क्या हो जाता है, n is equal to 13 हो जाता, n is equal to 13। now an is equal to a plus n minus 1 into d। सो हमारे पास a13 इज इक्वल टू a इज 7 प्लस n इज 13 माइनस 1 इंटू डी नहीं है ना। सो a13 है हमारे पास, दैट इज द 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 इज 12, 13 माइनस 1 इज 12 इंटू डी इज 12d। 7 इधर लाएंगे, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। माइनस किए तो कितना आता 20, माइनस किए तो कितना आता 28 इज इक्वल टू 12d। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में आके डिवाइड होता 28 डिवाइडेड बाय 12। नाउ 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा, अभी कट होता 2 3 जा 2 7 जा। सो d इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। डिफरेंस कितना आ रहा, 7 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा। नेक्स्ट Sn का फॉर्मूला हम लेके सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट a प्लस l यूज करेंगे, इजी होता है उससे, ओके। सो Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस l क्या है हमारा, ये वाला l है, इज द l। सो यस n कितना है, n is 13 is equal to 13 divided by 2, a is 7 plus l is 35। now 13 divided by 2 दोनों को ऐड करना है, बाहर आके इंटू हो जाते क्योंकि साइन नहीं है। कितना आएगा, एडिंग दिस टू 42, सो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, सो 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करना है, 13 एंड 21 3 1 6 2 3 7 2, so 273 is the yes 13। इसका आंसर आ गया, ओके। डी भी आया, देन yes 13 भी आया। Now the question number 3, a is there, a12 is there, d a we have to find out and yes 12 find out। so here a12 is equal to 37, d is equal to 3, a is equal to question mark, yes 12 is equal to question mark, yes 12 है तो n कितना आएगा, यहाँ n आएगा 12, ओके। सो नाउ an फार्मूला यूज करना है। क्यों, an फार्मूले से हमको फर्स्ट a का वैल्यू पता चलता।
an is equal to a plus n minus 1 into d. So a n कितना है, n is the 12 is equal to a is a नहीं है, a plus n is 12 minus 1 into d is 3. So a12 कितना है 37 is equal to a plus 12 minus 1 is 11 into 3. So 37 is equal to, मल्टीप्लाई करेंगे a plus 11 into 3 is 33 फिर इधर लाएंगे. So 37 minus 33 is equal to a. 33 is equal to a कितना आएगा, ये आएगा 4 is equal to a. So therefore a is equal to 4. a आ गया. अब क्या फाइंड करना है हमको, yes 12 फाइंड आउट करना है. we know that Sn is equal to n divided by 2 a plus l. Yes 12 S12 is equal to 12 divided by 2 into a is, यहाँ फाइंड आउट किया हम, a is the 4 plus l is, l क्या है, l ये है a का जो an का जो वैल्यू होता है ना, दिस इज द l. सो दैट इज द 37. नाउ 2 1 2 6 कितना आएगा 6 इन द ब्रैकेट, दोनों ऐड करें तो 41, बाहर लाएंगे 6 इंटू 41, दिस इज द यस 12. अब मल्टीप्लाई करना है इंटू 6 1 6 6 4 24, सो दैट इज 246. दिस वन इज द यस 12, सॉरी यस 12. इस प्रकार से करना है. Now the question number 4. Here a3 is equal to 15, yes 10 is equal to 125, a value we have to find out, and a10. So here a3 is equal to 15, s10 is equal to 125, a is equal to question mark and a10 is equal to question mark. अब हम यहाँ पे n, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, पर यहाँ पे n 3 है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो भी यूज करें ना, उसके अकॉर्डिंगली उसका n का वैल्यू लेते. सो फर्स्ट नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हम ये ले रहे है ना, या फिर हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल a3 इज द, इजी हो जाता, a3 इज द 15. सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 होता. फार्मूला लेके भी सब्स्टिट्यूट करो, फाइनली ये आंसर आता. अब मैं बताया था आपको, अगर यहाँ 3 आ रहा तो यहाँ पे कम आता, 2d आता. नेक्स्ट 2d इधर लाएंगे, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ nth terms of sum of nth terms of AP, sum of nth terms of AP. इसका फॉर्मूला क्या है, Sn is equal to n divided by 2a plus n minus 1 into d. So Sn अब हमको ये यूज करना है. So S10 is equal to 10 divided by 2 into a कितना है, नहीं है यहाँ पे, तो सेम एज इट इज ही लिखेंगे. 2a प्लस n कितना है, n 10 लिए ना, 10 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं है, डी एज इट इज. नेक्स्ट S10 इज 125. 2 1 2 5 ये हो जाएगा 5. नेक्स्ट 2a प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू डी इज 9d. अब ये 5 डिनोमिनेटर में आएगा. 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d. 5 1 5 25. सो देयरफॉर 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d. इसको अरेंज भी कर सकते हैं. a प्लस 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25. Now we have to substitute the value of a from the equation number 1 to this equation. Substitute the value of a from 1, we get
1 में से जो वैल्यू आ रही है a का उसमें लाके सब्स्टिट्यूट कर रहे। सो a2 इज एज इट इज, a इज 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ओके, अब ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई करके ओपन करना है। 2 इंटू 15 इज 30 माइनस 2 टू ज 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। 25 इधर लाएंगे, नहीं 30 को इधर लेके आएंगे। ओके, सो माइनस 4d प्लस 9d दैट इज द 5d। 5d इज इक्वल टू 25, ये 30 इधर आके माइनस 30 हो जाता। सो 5d इज इक्वल टू, ये माइनस किए तो माइनस 5, सो d इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 सा 5 1 सा, d इज इक्वल टू माइनस 1, d आ गया। अब हमको a चाहिए, सो दिस d वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in 1, we get वो साइड में लिखाता हूं मैं d। सो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू डी कितना है -1। सो a इज इक्वल टू 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, a इज इक्वल टू 17, a भी आया 17 टर्म्स। फर्स्ट टर्म्स आ गया, डिफरेंस आ गया। अब हमको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, a10 फाइंड आउट करना है। यहां पे करा दो। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द a10। तो a10 के लिए n क्या हो जाएगा हमारा, n इज द 10 हो जाएगा। तो हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पूरा फॉर्मूला भी ले सकते हैं, या फिर हम a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d आएगा ना। सो a10 हमारे पास नहीं है, सो दिस इज एज इट इज। a कितना आया 17 प्लस d इज 17 प्लस 9 इंटू d इज, d कितना है -1। सो 17 प्लस इंटू माइनस 9 दैट इज इक्वल टू, माइनस किया तो कितना होता 8। सो a10 इज इक्वल टू 8, a10 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, इसलिए जो है ऐसे आएगा। बड़ा वाला टर्म्स क्या है, फर्स्ट वाला टर्म्स क्या है 17 है, फिर 10th वाला टर्म्स क्या है 8 है। इट मीन्स दैट इज इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5th, वी वांट टू फाइंड हियर द a एंड a9। So here d is equal to 5, s9 is equal to 75, a is equal to question mark, a9 is equal to the question mark. Now we know that sum of nth term of AP is Sn is equal to n divided by 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, S9 लेंगे। सो S9 इज इक्वल टू, तो n 9 हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 2a, a है a नहीं है, 2a प्लस n इज द 9 माइनस 1 इंटू डी, d इज 5। तो d या 5 लिखे इंटू 5। S9 इज द 75 is equal to 9 divided by 2a plus 9 minus 1 is 8, 8 5 is 40, बाहर लेके ये इससे इंटू हो जाता। नेक्स्ट ये इधर आएगा रेसिप्रोकल होके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40, 2a प्लस 40 रेड्यूस होता है ये 3 से तो होता, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग 1 3 5 ज़ा 25 आ जाएगा। 25 इंटू 2 इज 50 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। फिर 40 को इधर लाएंगे, ओके 40 को इधर लाए तो कितना होता 50 बाई 3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे एलसीएम होगा, ओके सो
50 माइनस ये 3 इसको इंटू होता, 40 इंटू 3 इज 120, 120 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2a। अब माइनस किए तो कितना आएगा, 120 माइनस 50 मीन्स माइनस 70 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू a, सॉरी 2a। नेक्स्ट फिर 2 डिनोमिनेटर में आता, माइनस 70 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू a। 2 1 जा 2, 35 जा, सो देयर फोर a इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3, a आ गया माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3। नाउ फाइंड a9। नाउ a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। a इज ये तो अभी आया माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 इंटू d इज 5, माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 40, देन एलसीएम, ये 3 इधर आएगा, ये 3 इंटू होता माइनस 35 प्लस 40 इंटू 3 इज 120, ओके 120। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है 120 माइनस 35, 120 माइनस 35 मीन्स 5, 11 माइनस 3 मीन्स 8, 85 आएगा, 85 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द a9, ओके। यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा तो ऐसे ही लिख देना है। Now the question number 6th. Given a is equal to 2, d is equal to 8, sn is equal to 90, find n and an. Okay, तो n का जो भी वैल्यू आएगा ना उसके अनुसार an का फार्मूला, an का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सपोज n इज इक्वल टू 10, सो 8n हमको पता करना है। सो हियर a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो Sn है हमारे पास, Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते, सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो यस n हमारे पास कितना है, Sn इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू n नहीं है, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इज ऑल्सो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 8। इसको इधर लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 90 इंटू 2 इज इक्वल टू, या नहीं तो अभी और इसमें से कॉमन लेके और रिड्यूस कर सकते हैं, 90 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8 1 ज़ा 8। सो 90 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 8 कितना होगा, ये 8n एज इट इज होगा, 4 माइनस 8 मीन्स माइनस 4। अगेन द 2 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, 2 आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा पर हम 2 कॉमन लेंगे। सो 90 इज इक्वल टू, या 4 भी ले सकते हैं, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इज कॉमन, बच रहा क्या 2n माइनस 1, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। नेक्स्ट ये 2 आता डिनोमिनेटर में, 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1, 2 1 ज़ा 2, 45 ज़ा। Therefore, is equal to, multiply the n to the bracket terms, n into 2n, that is 2n square minus n। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है ये, सो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 2n स्क्वायर माइनस n। अब इसको इधर लाए तो माइनस 45 इज इक्वल टू 0। नाउ फैक्टर्स, अब इसके फैक्टर हमको बनाना है, सो क्या हो जाएगा 45 इंटू 2 इज 90, तो माइनस 90 है, माइनस 90 के ऐसे फैक्टर बनाना हमको क्या चाहिए, माइनस 1 चाहिए। सो माइनस 10 एंड प्लस 9, माइनस इंटू प्लस माइनस,
फिर सब्ट्रैक्ट किए तो -1 आएगा। सो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो हियर 2n इज द कॉमन, दोनों में क्या बचेगा, n माइनस 10, यहाँ पे 9, सो n माइनस 9 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे भी 5 आएगा, बिकॉज 2 5 10 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 5, n का वैल्यू 5 आता, ये नहीं आता। 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 or not? No. If we substitute the integers, then it becomes the 0. How? No. Suppose अगर हम यहाँ पे 1 लिए, 1 into 2 2, then plus 9 means 11, 0 लिए, 0 into 2 0 into 2 0 plus 9 is 9, तो ये 0 नहीं बनता, so that is not equal to 0. So 2n is not equal to 9, इधर लाएंगे -9, n is not equal to -9 divided by 2. Okay, so we can use here the positive integers. तो n आ गया हमारे पास। अब हमको फाइंड आउट करना है a10। Now a n is equal to a plus n minus 1 into d. So a हमको क्या चाहिए, a is the n, सॉरी n कितना है हमको, 10 नहीं है, हमको चाहिए यहाँ पे n is the 5. So we can substitute the value here, 5 is equal to a is 2 plus 5 minus 1 into d is 8. Okay, so 2 plus 4 into 8, so 2 plus 32, so a, then add this one, that is the 34, a5, इस प्रकार से आएगा। Now the question number 7, पहले मैं गिवन वैल्यूज लिख लेता हूं। a is equal to, here a is equal to 8, an is equal to 62, sn is equal to 210, n is equal to question mark, d is equal to question mark। ये दिया क्वेश्चन में। अब हमको n और d पता करना है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट sn का फार्मूला यूज कर सकते हैं। sn है हमारे पास, an है, an इज, दिस इज द यल, इसको यल भी बोलते हैं ना, यल भी आ गया हमारे पास, a भी है, तो n एक मिल जाता हमको। सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ AP is Sn is equal to n divided by 2 a plus l। Sn है हमारे पास, Sn कितना है, 210 is equal to n divided by 2, a is the 8 plus l ये है, that is the 62। So 210 is equal to n by 2 into, ऐड करके बाहर लेना है, कितना हो जाता है ये 70। So 2 1s are 2 35s are। Next 210 is equal to 35n, फिर 35 नीचे लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू n, कैंसल होता 6 35 1s are 35 6s are, सो n इज इक्वल टू 6, n आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। फॉर द d वी कैन यूज an फार्मूला। an is equal to a plus n minus 1 into d। an कितना है, an is 62 is equal to a is 8 plus n is 6 minus 1 into d। d पता करना है ना, 8 को इधर लाएंगे, 62 minus 8 is equal to 6 minus 1 is 5d, ये कितना हो जाता, 56 होता, 54 होता, 54 is equal to 5d। So therefore 5d is equal to 54,
सो d इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हियर an is equal to 4, d is equal to 2, sn is equal to minus 14, find here the n and a। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट an का फार्मूला लेंगे। an is equal to a plus n minus 1 into d। सो an है हमारे पास 4 is equal to a plus n minus 1 into d भी है, d is the 2। सो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एन, 2n माइनस 2। अब ये 2 इधर लाएंगे, 4 प्लस 2 माइनस 2 आके प्लस 2 हो जाता है, ए प्लस 2n। सो 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। फिर इसको 2n को इधर लाएंगे, 6 माइनस 2n इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। नेक्स्ट एस एन यूज करना है। Sum of nth term of AP is Sn is equal to n by 2 n by 2 a plus l ले सकते हम, क्योंकि l का वैल्यू l इज दिस वन, an इज द l। ओके, सो Sn है हमारे पास, Sn इज माइनस 14 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, a है, a नहीं है, सो a प्लस l इज 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर इंटू होता, माइनस 14 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये इसको इंटू करेंगे, हाँ, n इंटू a an, ओके, n इंटू a an प्लस 4n। So this one is the minus 28 is equal to an plus 4n। So now a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a वैल्यू इज दिस वन हियर, putting the value of a from 1 we get minus 28 is equal to a कितना है, a यहाँ पे है 6 माइनस 2n इंटू n, a के प्लेस पे a का वैल्यू इंटू n प्लस 4n। ओके, माइनस 28 इज इक्वल टू, फिर आप मल्टीप्लाई करना है, n इंटू 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n। ओके, अब ये दोनों वेरिएबल्स जो है, दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। माइनस 28 इज इक्वल टू 6n प्लस 4n, दैट इज द 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब इधर लाके अरेंज करेंगे, माइनस बिकम्स प्लस, इधर आके प्लस हो जाता, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। नाउ डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाय 2, सारे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 के फैक्टर बनाना है हमको, 7 2 ज़ा 14, सो दिस इज द माइनस 14 मीन्स माइनस 7 प्लस 2, ये माइनस होकर कितना आता, माइनस 5 आता। सो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द कॉमन हियर, कॉमन क्या है यहाँ पे, n इज द कॉमन, n माइनस 7 हियर, प्लस 2 इज द कॉमन, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 एंड n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7, और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, n जो है नेगेटिव नहीं आता, सो n इज पॉजिटिव इंटीजर्स, n इज ऑलवेज
पॉजिटिव इंटीजर, ओके, और नेचुरल नंबर लिख सकते हैं हम। तो n हमको क्या लेना है, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 7, n आ गया 7। अब और एक क्या फाइंड आउट करना है हमको जो है फाइंड आउट करना है a। सो दिस n वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ रफ करके यहाँ बताऊंगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन 1 वी गेट, n का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमको सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, यहाँ पे था मैं रफ कर दिया। सो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n था, n के प्लेस पे हम 7 लेंगे। सो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 इज 14। सो a इज इक्वल टू, माइनस किया तो कितना आता, -8। सो दिस इज द a वैल्यू, a आया -8 एंड n इज द 7। क्वेश्चन नंबर 9, पहले मैं यहाँ पे गिवन वैल्यू लिखता हूँ, गिवन या हियर बोल के भी ले सकते, गिवन भी लिख सकते हैं। हियर a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s मीन्स Sn ही है, इज इक्वल टू 192, d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है Sn है ना, तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस l मीन्स an भी ले सकते हैं हम। सो Sn है 192 इज इक्वल टू n इज 8 डिवाइडेड बाई 2, a इज 3 प्लस an। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आएगा 192 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8, उल्टा रेसिप्रोकल होके आता 3 प्लस an। कट होता है 4 से कट करेंगे इजी वे में, 2 से, 2 4 जा 2 9 जा, रिमेनिंग 1, 2 6 जा, 4 से फिर आएगा 4 1 जा, 4 2 जा 8, रिमेनिंग 1, 4 4 जा 16, 24 हो जाएगा। 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस an। सो दैट इज द 48 इज इक्वल टू 3 प्लस an। इसको इधर लाएंगे, 48 माइनस 3 इज इक्वल टू an, माइनस मीन्स 45 इज इक्वल टू an। सो देयरफॉर an इज इक्वल टू 45। an फाइंड आउट किए, अब an का फॉर्मूला लेके सब्स्टिट्यूट करते तब d आता। सो नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है हमारे पास, an कितना है, an इज द 45, a भी है, a इज 3, n इज 8 माइनस 1 इंटू डी। 3 को इधर लाएंगे, 45 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज 7 इंटू डी, 7d। माइनस किए तो कितना होता, 42 इज इक्वल टू 7d। सो देयरफॉर 7d इज इक्वल टू 42, d इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7 6 जा, सो d इज आल्सो इक्वल टू 6। इस प्रकार से आएगा, पहले Sn यूज होगा, उसके बाद जो है an यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 10, here L is the 28, here L is equal to 28, L means an, S means Sn is equal to 144 and there are total 9 terms, total AP में 9 terms हैं, means that is the finite AP. So n is equal to 9, a is the question mark. अब हमको Sn का फॉर्मूला यूज करना है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP is
एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस यल, ए प्लस यल। एस एन है हमारे पास 144 इज इक्वल टू एन, एन है, एन इज द 9 डिवाइडेड बाई 2, ए नहीं है, ए प्लस यल इज 28, ए प्लस यल दैट इज द 28 ब्रैकेट क्लोज। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया था। सो 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होता, 2 ऊपर आता 9 नीचे आता। सो ए प्लस 28, सो 9 1 जा रिमेनिंग 5, 9 6 जा, ओके 16 हो गया। 16 इंटू 2 इज 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28, सो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए, ये आएगा 4 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 4। इस प्रकार से हमको खाली ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे यल भी दिया एस एन भी दिया, तो हमको यल यूज करना है। तो यल का फार्मूला जहाँ पे आ रहा ना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस यल, वो यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, सो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी के ऐसे कितने टर्म्स हैं, 9 17 25 सो ऑन, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं और इन टर्म्स का जो है सम जो है प्लस किए तो 636 आ रहा, तो हमको n पता करना है यहाँ पे। सो हियर a is equal to 9, d is equal to 17 minus 9, so that is equal to the 8, d भी आ गया। नेक्स्ट n हमको पता करना है, 636 क्या है, एस एन है, एस एन इज इक्वल टू 636, क्योंकि सम बोल के है ना, सो 636। नाउ एस एन फार्मूला, सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए पी is Sn is equal to n divided by 2 2a plus n minus 1 into d, ऐसे आएगा। सो Sn हमारे पास है 636, n नहीं है, n डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a इज 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 8। सो 636 इसको ऐसे ही रखेंगे, n बाई 2, दिस इज द 18 प्लस, अब मल्टीप्लाई करके ओपन करना, 8 इंटू एन 8n माइनस 8, 636 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, सो 18 माइनस 8 कितना होगा, 10 प्लस 8n, 636 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 इज द कॉमन, 5 प्लस 4n, क्यों आया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 कैंसिल करने के लिए हम लिए कॉमन, 636 इज इक्वल टू n इंटू 5n प्लस n इंटू 4 दैट इज द 4n स्क्वायर। अब अरेंज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे, सो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ये इधर लाए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर है, तो जो है ये कोएफिशिएंट जो है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आता, 2544, चेक कर सकते हैं आप। अब इसके फैक्टर कैसे बनाना है हमको, फैक्टर आना है हमको +5, सो फैक्टर आएंगे 53 एंड 48, ये माइनस में है तो ये भी माइनस होगा, ये प्लस होगा, सब्ट्रैक्ट किए तो -5 आएगा, -5 चाहिए, +5 चाहिए, +5, तो दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस एंड दिस इज प्लस, चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 48 53, आ रहा ना, सो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, कॉमन आएगा n, 4n प्लस 53 माइनस, अब हमको यहाँ पे भी 4n ही आना है,
आ रहा समझ में, 4 ये नहीं आ रहा है। सो इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, सो यहाँ पे आएगा 12। अरे यार एक बार लिखता हूँ, अच्छा 12 4 जा 48। अब यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 53 ही आता, 53 इंटू 12 बोले तो यही आता, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। नाउ 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, n 0 नहीं, अभी इसको दो टर्म बनाना है, सो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दो टर्म बन गए। अब ये दोनों टर्म्स को 0 से इक्वेट करना है, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, 4n and here n minus 12 is equal to 0, n is equal to 12 and this is not equal to 0. Why? When we substitute the value of n, अगर हम AP के अनुसार अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो नेचुरल नंबर में तो हमको 0 नहीं आता, सो दैट इज 4n is not equal to minus 53, n is not equal to minus 53 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में आ रहे ना, इसके वास्ते क्या है, n is not the नेगेटिव इंटीजर्स, ओके, और फ्रैक्शन में भी नहीं आते, नेगेटिव इंटीजर में भी नहीं आते, सो ऐसे एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। सो फाइनल आंसर इज हियर, फाइनल आंसर इज n इज इक्वल टू 12, तो एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, must be taken to give the sum of the, यहाँ पे लिख सकते हैं sum of 12 terms of AP becomes 636, 636, इस प्रकार से करना है।